broiler production. ये जो बर्ड होती है पोल्ट्री बर्ड, they are having high efficiency of utilization of the nutrient is very high. So they are converting that feed into meat and eggs. So efficiency of feed conversion is very high. And because of its last 3 or 4 decades, इसमें जेनेटिक पोटेंशियल पे काफी काम हुआ है, थैंक्स टू बायोटेक्नोलॉजी एंड फीडिंग a balanced diet. So we are able to produce 330 eggs per laying cycle. Means we are able to produce now 330 eggs from one layer. एक लेयर मुर्गी से हम साल में 330 अंडे ले सकते हैं. We can take 330 eggs from one layer. When I was like you in BBSC in 80s, it was 210 eggs. 330 eggs from in BBSC in 80s. The same layer was producing 210 eggs. 210 अंडे देती थी. So see the genetic potential, how genetic potential has been changed, and we are converting it into egg and meat. See the conversion ratio. मेरे जमाने में 2.2 kg ब्रॉयलर फीड खाता था और 1 किलो बॉडी वेट गेन देता था, and it is called FCR, feed conversion ratio. In 80s, अब देखिए, with 1.6 kg of feed, we can produce 1 kg of live weight. 1 किलो लाइव वेट अपन ले सकते हैं 1.6 kg फीड खिलाने से. In my age, when I was in BBSC, same broiler we were feeding, and 2.2 kg feed, it produced 1 kg body weight gain. So how that genetic potential has been changed for broilers and layers, thanks to breeding and thanks to animal nutrition people. See the birds. Nowadays we are having birds with 330 eggs in 365 days, and within 42 days the broiler is 3 kg. 42 दिन में 6 weeks में 3 किलो का ब्रॉयलर आ रहा. सीधा मीट प्रोडक्शन एंड सीधा एग प्रोडक्शन. तो पोल्ट्री प्रोडक्शन है, इट प्रोवाइड अस एग्स एंड पोल्ट्री मीट, जिसको व्हाइट मीट बोलते हैं, एंड दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोवाइडिंग protein to the human beings throughout the world. पोल्ट्री जो सेक्टर है, it is an organized sector. और यहाँ अगर आप साउथ में जाएंगे, जहां मैंने काम किया है वेंकटेश अयत्री के साथ, you will see एक भाई के पास 2 लाख लेयर है, दूसरे भाई के पास 2 लाख लेयर है, तीसरे भाई के पास 2 लाख लेयर. एक ही घर में 6 लाख लेयर है, और एक ही घर में 6 लाख अंडे पर डे हो रहे हैं. तो ये पोल्ट्री प्रोडक्शन ने एक इंडस्ट्री का रूप ले लिया है. दे हैव टेकन द शेप ऑफ इंडस्ट्री इन आवर कंट्री. ब्रॉयलर है, बहुत बड़े बड़े फार्म्स हैं जिसमें 5 लाख 10 लाख ब्रॉयलर पर मंथ है कैपेसिटी. और यहाँ जो वेटरनियंस काम करता है, they are earning 2 to 3 crores per annum. तो ये जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है, ये सब में ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री है. एग्रीकल्चर और एनिमल साइंस में ये सब में ज्यादा. और इसने क्या किया है, इट हैज टेकन अ शेप ऑफ इंडस्ट्री. एंड
Broiler is growing at the rate of 12 to 15% and layer at the rate of 6 to 8%. इतना ग्रोथ रेट किसी भी कमोडिटी में नहीं है. एग्रीकल्चर और वेटरनरी फिशरीज में है. आजकल फिशरीज इज गोइंग एट द रेट ऑफ 15 to 20%. तो इतना किसी भी, अगर आप यू गो इन एनी इंडस्ट्री, यू गो इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यू गो इन एनी इंडस्ट्री, केवल पोल्ट्री ही ऐसी इंडस्ट्री विच इज गोइंग एट द रेट ऑफ 10 to 15% एंड अलोंग विथ फिशरीज. इतनी ग्रोथ किसी भी इंडस्ट्री में नहीं है. और जब इतना ग्रोथ है तो इसमें जॉब्स के चांसेस बहुत ज्यादा. सो इफ यू नो द पोल्ट्री न्यूट्रिशन, पोल्ट्री ब्रीडिंग एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट, you are going to have a very good job. With this background, we are going to start with feeding of poultry. So there are 6 major nutrients which are required by any animals: carbohydrate, protein, fat, minerals and vitamins. So the first requirement is energy requirement. Whenever we are feeding any poultry, any kind of the poultry, broilers, and the first consideration is we are going to balance energy. We are going to provide us sufficient amount of energy in a ration of the broilers or layers. और ये बोला जाता है कि बर्ड्स ईट्स फॉर इट्स एनर्जी. ये भी कोई भी एनिमल है, इट ईट्स फॉर इट्स एनर्जी. अगर आपका एनर्जी कंसंट्रेशन मैं आपके डाइट में ज्यादा कर दूं, फीड कंजम्पशन कम हो जाएगा. तो फीड कंजम्पशन और फीड इनटेक इज inversely proportional to dietary concentration of the energy. If we increase the energy dietary concentration in the diet, the feed intake it will reduce. So, in other words, we will say that birds eat for its energy. एनर्जी के लिए बर्ड खाना खाती है. तो अगर आपने डाइट की एनर्जी कम कर दी है तो आपको, सेम थिंग इज विथ ह्यूमन बीइंग आल्सो. अगर डाइटरी कंसंट्रेशन ऑफ एनर्जी आपका ज्यादा होगा, आपको मैं रसगुल्ले ही रख दूं तो आप कम खाएंगे. और एनर्जी कहां से देते हैं अपन? कंसंट्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सीरियल ग्रेन्स. पोल्ट्री में आप सीरियल ग्रेन्स में एनर्जी देते हैं. वी आर गोइंग टू गिव एनर्जी थ्रू सीरियल ग्रेन्स एंड इट्स बाय प्रोडक्ट. तो हम एनर्जी देने के लिए जो पोल्ट्री है उसकी डाइट्स में हम मक्का देते हैं, मेज इज a chief source of energy. Corn and maize is a chief source of energy. We also provide sorghum, broken rice, broken wheat. So these are the ragi, kodo, kutki also. These are the millets. So any kind of cereals, and particularly maize, we are using in the poultry diet as a energy source. Or byproduct of these cereals, wheat से आप मैदा बनाते हैं और जो बाय प्रोडक्ट बचता है उसको बोलते हैं व्हीट ब्रान. राइस पॉलिश इज अनदर बाय प्रोडक्ट. धान में या व्हीट में या राइस से जब चावल बनाते हैं उसकी पॉलिशिंग करते हैं. और जो पॉलिशिंग निकलती है उसका आउटर कोट और उसका ऊपर का क्यूटिकल जो निकलता है उससे एक बाय प्रोडक्ट बनता है, दैट इज कॉल्ड राइस पॉलिश. और राइस पॉलिश से जब तेल निकाल लिया जाता है इट इज कॉल्ड डी ऑयल राइस पॉलिश और DORB. So these are the by product.
वीट से वीट ब्रान बनता है और राइस से राइस पॉलिश एंड डीआइल्ड राइस पॉलिश, जिसको DORB बोलते हैं, डीआइल्ड राइस ब्रान और डीआइल्ड राइस पॉलिश। दीज आर द बाय प्रोडक्ट। इसमें एनर्जी सीरियल से कम रहती है। दीज आर द फेयर सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये जो है, these feed ingredients we are using as a source of energy when we are preparing the poultry diets. Chiefly they are corn और मक्का mainly यूज करते हैं, मक्का और ज्वार। ज्वार में भी कौन सी ज्वार यूज करते हैं? वी आर यूजिंग, ज्वार दो प्रकार की होती है, आपने देखा होगा, स्वर्गम। वन इज व्हाइट वैरायटी एंड अनदर इज ब्लैक वैरायटी। ब्लैक वैरायटी में टेनिस ज्यादा होता है, एंड टेनिस दे चिलेट प्रोटीन। सो वी आर नॉट यूजिंग ब्लैक वैरायटी, वी आर यूजिंग white variety of the sorghum. So they provide the energy. They are the energy source when we are preparing diets for the poultry. Another energy source, जब हमको डाइट में, पोल्ट्री के डाइट में एनर्जी ज्यादा देनी होती है या किसी भी एनिमल्स के सोर्स में, तो हम उसमें तेल मिलाते हैं, ऑयल। और आपको मालूम होना चाहिए ऑयल प्रोवाइड डबल एनर्जी देन सीरियल्स। अनाज से डबल एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट से डबल एनर्जी देता है कौन? ऑयल। सो व्हेन फॉर ब्रॉयलर्स पर्टिकुलरली वी आर ब्रॉयलर्स की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है इज वेरी हाई। सो फॉर प्रिपेयरिंग अ ब्रॉयलर डाइट्स we are using this fat supplement, particularly oil. ऑयल में कितनी एनर्जी होती है? कार्बोहाइड्रेट्स में देखिए, आप देखिए मक्के में, if you see in maize, the energy is 3300 kilocalorie per kg diet. और ऑयल में अगर आप देखेंगे तो इट इज 8000 to 8500 kilocalorie per kg of diet, per kg of oil. So to increase the energy density of the diet in poultry, we are adding fat in terms of oil. और एक और चीज है कि सोया ऑयल में सोया लेसिथिन इज ए बाय प्रोडक्ट. So we are using soya lecithin as a phospholipid. It also contains choline, and it also having that energy value. The energy value is 5000 to 5500 kilocalorie per kg of soya lecithin. So we are also using soya lecithin as a concentrate source of energy when we are preparing a poultry diet. यहां मैं और एक चीज बताना चाह रहा हूं. एनर्जी जो कंसंट्रेशन है, एनर्जी हम कैसे देते हैं? द यूनिट ऑफ द एनर्जी फॉर प्रिपेयरिंग द डाइट्स ऑफ द पोल्ट्री इज किलोकैलोरी ME per kg of the diet. We are expressing the energy concentration of the diet in terms of its concentration. डेयरी में आपने देखा होगा कि इतना ME पर kg पर एनिमल्स पर डे देना है. बट इन केस ऑफ पोल्ट्री, क्योंकि हम पोल्ट्री को मास में खिलाते हैं, एक मुर्गी को अलग अलग नहीं खिलाते. इन पोल्ट्री दे आर फेड इन मासेस. ब्रॉयलर है, आपको 10,000 का ब्रॉयलर मिलेगा. लेयर है 50,000 लेयर, आपको 1 लाख लेयर इकट्ठी मिलेगी. सो वी आर फीडिंग द पोल्ट्री इन द मासेस. सो द एनर्जी वी आर प्रोवाइडिंग इन concentration in the diet. Like the unit will be kilocalorie ME per kg of the diet. Means we are providing energy in terms of concentration in the diet, because per animals we are not feeding that poultry. Poultry is not fed individually, it is fed in masses. So the energy we provide in terms of concentration in the diet, and generally it is
किलो कैलोरी एमई पर केजी ऑफ द डाइट। पोल्ट्री के केस में हम एमई के रूप में एनर्जी रिक्वायरमेंट इनका देते हैं। व्हाई? बिकॉज पोल्ट्री में जो इनका फीसिस और यूरिन वो इकट्ठी पास होती है, दे आर पास्ड कंबाइंडली, यूरिन और फीसिस, ये अलग अलग नहीं आती। तो एमई निकालने के लिए आपको मालूम है ग्रॉस एनर्जी इनटेक माइनस फीकल एनर्जी एंड यूरिनरी एनर्जी, इट गिव्स यू मेटाबोलाइजेबल एनर्जी। So to estimate energy in case of poultry it is very easy. आपको feces की एनर्जी और यूरिन की एनर्जी अलग अलग नहीं निकालनी पड़ती। You have to collect the excreta and excreta contain both feces as well as urine. So it is very easy to calculate ME in case of poultry than another animals like ruminants, where the feces and urine comes out separately. तो पोल्ट्री में हम क्या करते हैं, द एनर्जी रिक्वायरमेंट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मेटाबोलाइजेबल एनर्जी एंड द एनर्जी वैल्यू provided to the animals, to the poultry, it is in terms of its concentration in the diet and it is in terms of kilocalorie ME per kg of the diet. Right? Now protein. Protein is another component which is required by the poultry, because in broilers this protein is very much important, because broilers में क्या होता है, we want weight gain, और weight gain कहाँ से आएगा? broilers में it is because of skeleton, और skeleton में क्या डिपॉजिट होगा? प्रोटीन और फैट डिपॉजिट होगा। so body weight gain is nothing but deposition of the fat and energy, और एनर्जी भी एक्सेस में होगा तो it is going to convert in a protein and protein is going to be deposited in the skeleton. तो जो body weight broilers का होता है, it is weight of skeleton and deposition of the protein and energy in that skeleton. तो protein का deposition is very much required in case of broilers. तो जितना जल्दी weight gain होगा उतना ही जल्दी मार्केट में broilers बेचेंगे, उतना ही जल्दी पोल्ट्री में फायदा होगा। तो जितना कम फीड खाके जितनी जल्दी बॉडी वेट देगा, सो उतना ही अच्छा ब्रायलर्स होगा और उतना ही ज्यादा फार्मर्स को फायदा होगा। तो प्रोटीन का क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द प्रोटीन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर फीडिंग द मोनोगैस्ट्रिक एनिमल्स। मोनोगैस्ट्रिक एनिमल्स को हम जब खिलाते हैं तो क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द प्रोटीन बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अपने को क्वांटिटी भी देना है, क्वालिटी मींस बायोलॉजिकल वैल्यू, अच्छी बायोलॉजिकल वैल्यू, इतना अमीनो एसिड, उनका अमीनो एसिड का कंपोजिशन अच्छा होना चाहिए। तो जिसका बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ द प्रोटीन इज वेरी गुड, उनका जो असॉर्टमेंट ऑफ अमीनो एसिड्स इट इज एज गुड एज बॉडी कंपोजिशन ऑफ द प्रोटीन। जो बॉडी कंपोजिशन है प्रोटीन का, उसमें अमीनो एसिड्स का जैसा जैसा असॉर्टमेंट होता है, सेम अगर कंपोजिशन और असॉर्टमेंट ऑफ अमीनो एसिड्स अगर फीड प्रोटीन में मिल जाए तो वो उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू हाई होती है। तो आपको गुड क्वालिटी प्रोटीन देना बहुत जरूरी है। और इसमें मैंने आपको, अगर आप ये देख रहे हैं स्लाइड, तो 10 अमीनो एसिड्स, एक्चुअली में 20 अमीनो एसिड्स दे आर needed by the animals। उसमें 10 essential amino acids होते हैं। Essential amino acids are those amino acids which are not synthesized in the body in a required amount, so they are dietary essential। Essential amino acids वो amino acids हैं जो कि बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, रिक्वायर्ड अमाउंट में होते हैं पर रिक्वायर्ड अमाउंट में नहीं होते। जो ग्रोथ और आपका प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड है उस अमाउंट में दे आर नॉट बीइंग सिंथेसाइज्ड, सो दे आर डाइटरी एसेंशियल, मींस उनको डाइट में देना जरूरी है। इन केस ऑफ पोल्ट्री आपको आप 10 दिन अपन एनिमल न्यूट्रिशन में, ह्यूमन न्यूट्रिशन में पढ़ते आ रहे हैं 10 से 10 एसेंशियल अमीनो एसिड है, एबीएल एमपीटीटी हमने याद किया था, आप लोगों ने जैसे भी याद हुआ किया हो।
So 10 amino acids, they are essential. And in case of poultry, the 11th amino acid is glycine. Glycine along with AB Hill NPTT. AB means alanine, valine, आपको मालूम है 10. And glycine is required because they help in synthesis of uric acid. जो प्रोटीन का एक्सक्रीशन होता है अनमेटाबोलाइज्ड प्रोटीन का रूमिनेंट्स में यूरिया के रूप में होता है, बट इन केस ऑफ पोल्ट्री और बर्ड्स इट इज इन टर्म्स ऑफ यूरिक एसिड. तो यूरिक एसिड की सिंथेसिस करने में ग्लाइसिन इज इंपॉर्टेंट. सो 11 amino acids, they are essential in case of poultry. So when we are providing poultry protein requirements to the poultry, the quality and quantity both they are very important. We have to balance protein requirement. पहले जब हम लोग पढ़ते थे we are balancing protein. Nowadays in 21st century हम प्रोटीन तो देते ही है, we are balancing also essential amino acids. हम जब पोल्ट्री की डाइट बनाते हैं we are balancing amino acids also, and that too essential amino acids. तो जब आप मोनोगैस्ट्रिक एनिमल न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो पोल्ट्री प्रोटीन न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड प्रोटीन में क्वालिटी ऑफ द प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड व्हेन यू आर टॉकिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोटीन, essential amino acids are very important. There are certain semi essential amino acids. Semi essential amino acids like cysteine से आप मिथेनिन ले सकते हैं, टायरोसिन से फिनाइलिन ले सकते हैं, and glycine you can synthesize from serine. So मिथेनिन अगर आपके पास हाई ज्यादा है तो सिस्टीन बन सकती है, and vice versa टायरोसिन से आप फिनाइलिन बना सकते हैं. So these are called semi synthetic semi essential amino acids. अब माइंड यू जो बॉडी प्रोटीन बनती है उसमें दोनों की नाइट्रोजन चाहिए. वी रिक्वायर्ड नाइट्रोजन फ्रॉम essential amino acids and from non essential amino acids. दोनों को मिला के ही बॉडी प्रोटीन बनती है. सो बोथ essential amino acids जो कि डाइटरी एसेंशियल होते हैं आपको डाइट में लेना जरूरी है, और जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो डीएमिनेशन ट्रांसएमिनेशन से बॉडी में ही बन जाते हैं. ओवर ईटिंग एंड अंडर ईटिंग ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग अमीनो एसिड्स का लॉस होता है. देयर इज वन आल्सो कांसेप्ट मैं आपको बताऊं, देयर इज अ कैलोरी प्रोटीन कांसेप्ट. ये कैलोरी प्रोटीन कांसेप्ट है इन when we are feeding the monogastric animals. Calorie protein ratio is a ratio of kilocalorie ME per kg of the diet divided by protein percentage in the diet. और आपको मैं बता दूं कि आप पोल्ट्री को या मोनोगैस्ट्रिक एनिमल्स में मैक्सिमम वी आर फीडिंग मोनोगैस्ट्रिक एनिमल्स इन मासेस, तो प्रोटीन का जो रिक्वायरमेंट है वो भी आप परसेंटेज में concentration of the protein is given in terms of percentage. तो जो रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की वो परसेंटेज में आप डिनोट करते हैं इन केस ऑफ पोल्ट्री, और जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है किलो कैलोरी एमई पर केजी डाइट, एनर्जी कंसंट्रेशन और प्रोटीन कंसंट्रेशन पर परसेंटेज में. तो देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ कैलोरी प्रोटीन रेशियो. कैलोरी प्रोटीन रेशियो इज इक्वल्स टू किलो कैलोरी ME per kg of the diet divided by percentage of the protein in the diet. So there is calorie protein ratio when we are feeding the animals. इसका मैं आगे और भी बताऊंगा. तो कैलोरी प्रोटीन रेशियो इसलिए जरूरी है क्योंकि एनर्जी इज द फर्स्ट लिमिटिंग न्यूट्रिएंट्स when we are feeding the monogastric animals. अगर एनर्जी आप अगर प्रॉपर एनर्जी नहीं दे रहे हैं and you are providing all the nutrients like protein, minerals and vitamins, तो अगर प्रोटीन कम होगी आपकी डाइट में एनर्जी इज फर्स्ट लिफ्टिंग न्यूट्रिएंट. अगर एनर्जी कम होगी तो व्हाट विल हैपन,
You are not going to utilize protein, minerals and vitamins, though you are providing them in an optimal amount. अगर आप optimal amount में सब nutrient दे रहे हैं, except energy, तो आपको प्रोटीन और मिनरल्स एंड विटामिन्स नहीं मिलेंगे, because they are not able to utilize by the body, because the body is lacking energy. तो एनर्जी इज ए फर्स्ट लिमिटिंग न्यूट्रिएंट. तो एनर्जी को आपको पहले देना जरूरी है. तो देयर इज द कांसेप्ट ऑफ कैलोरी प्रोटीन रेशियो. अगर आपने एनर्जी कम दी और प्रोटीन जितना रिक्वायर्ड है उतना दे दिया, तो क्या होगा? प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी और मिनरल्स की भी डेफिशिएंसी हो जाएगी. तो कैलोरी और प्रोटीन का रेशियो होना जरूरी है. डिफरेंट फिजियोलॉजिकल कंडीशन में, लाइक प्री स्टार्टर, स्टार्टर एंड फिनिशर, 3 फेजेस होती है ब्रॉयलर्स में, तो उसमें एनर्जी और प्रोटीन कांस्टेंट रेशियो होना चाहिए. अगर कैलोरी के साथ प्रोटीन का रेशियो नहीं है तो प्रोटीन और मिनरल्स और विटामिन्स यूटिलाइज नहीं होंगे, एंड देयर विल बी अ डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन. सो देयर शुड बी अ कांस्टेंट रेशियो ऑफ कैलोरी टू प्रोटीन इन डिफरेंट फिजियोलॉजिकल कंडीशन. क्योंकि बर्ड क्या होती है? इट ईट्स फॉर इट्स एनर्जी. अगर आपने एनर्जी कंसंट्रेशन ऑफ द डाइट बढ़ा दिया तो बर्ड क्या करेगी? कम खाएगी. और अगर आपने उसी प्रोपोर्शन में प्रोटीन नहीं दिया है एनिमल्स को, तो you will see the deficiency of the protein in those animals. So there is a concept of energy protein ratio in case of animals. ये जो मैं गाना गा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्वालिटी ऑफ प्रोटीन बताते हैं. ठीक है. अब एक आता है क्रिटिकल अमीनो एसिड्स. क्रिटिकल अमीनो एसिड्स क्या है? They are the essential amino acids which are generally deficient in poultry diets. इनको क्रिटिकल अमीनो एसिड्स करते हैं. तो जो 11 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, इसमें से कुछ अमीनो एसिड्स दे आर वेरी क्रिटिकल, और उसमें नंबर 1 है मीथेनिन, लाइसिन, थियोनिन, ट्रिप्टोफैन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन एंड आर्जिनिन. दीज आर द क्रिटिकल अमीनो एसिड्स. ये जो 5-6 अमीनो एसिड्स हैं, they are very critical. तो आपको प्रोटीन के साथ साथ इन क्रिटिकल अमीनो एसिड्स की को बैलेंस करना पड़ेगा डाइट में. अदरवाइज क्या होगा? इनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी और प्रोडक्शन गिर जाएगा. तो पहला जो मैंने कांसेप्ट बताया, प्रोटीन क्वालिटी, एसेंशियल अमीनो एसिड्स, क्रिटिकल अमीनो एसिड्स. एंड अमंग द क्रिटिकल अमीनो एसिड्स, certain अमीनो एसिड्स they are called limiting अमीनो एसिड्स. इन लिमिटिंग अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? लिमिटिंग अमीनो एसिड्स को how you can define the amino acids in a feed that is most deficient in relative to the bird's requirement is referred as first limiting amino. The amino acid in the feed that is most deficient in relative to the bird's requirement is referred as first limiting amino acid. Or you can say the ratio of amino acids present in the feed and bird requirement. तो फर्स्ट लिमिटिंग अमीनो एसिड्स क्या होंगे? फर्स्ट लिमिटिंग, सेकंड लिमिटिंग एंड थर्ड लिमिटिंग. हम जो पोल्ट्री को डाइट दे रहे हैं उसमें जो सब में कम अमीनो एसिड होगा वो फर्स्ट लिमिटिंग होगा. किसके? बर्ड के रिक्वायरमेंट के हिसाब से. तो मैं अपने बर्ड को जो भी फीड दे रहा हूँ उसमें जो सब में कम अमीनो एसिड प्रेजेंट होगा बर्ड की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, दैट इज फर्स्ट लिमिटिंग. तो फर्स्ट लिमिटिंग is a ratio of amino acid present in the feed and upon bird's requirement. First limiting होगा, और फिर उसके हिसाब से second limiting and third limiting. तो मैंने 3 चीज अमीनो एसिड्स में बताई. पहली चीज essential अमीनो एसिड, second is critical अमीनो एसिड and third is limiting अमीनो एसिड. और लिमिटिंग अमीनो एसिड्स को अगर आपने बैलेंस नहीं किया, प्रोटीन आपने दे दी है, जैसे किसी ब्रॉयलर को, स्टार्टर को 23% प्रोटीन चाहिए, तो डाइट में आपने 23% प्रोटीन दे दी, बट आपने लाइसिन और मीथेनिन जो कि लिमिटिंग अमीनो एसिड्स है ब्रॉयलर में, उनको बैलेंस नहीं किया, तो देयर विल बी डेफिशिएंसी ऑफ द
अमाइनो एसिड्स और फीड इंटेक गिर जाएगा और प्रोडक्शन गिर जाएगा. तो यू हैव टू बैलेंस critical and limiting amino acids, or you have to provide critical amino acids in the diet of the monogastric animals, whether it is poultry or swine, and you have to balance, definitely you have to balance limiting amino acids when you are preparing a diet of the poultry. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना. तो इसको आपको बैलेंस करना ही पड़ेगा. तो ये 3 अमाइनो एसिड्स मैंने बताए, ठीक है. अब आया आप अमाइनो एसिड्स का इम्बैलेंस होता है. अमाइनो एसिड्स का इम्बैलेंस में आपने देखा होगा कि इफ देयर इम्बैलेंस द यूटिलाइजेशन ऑफ फर्स्ट लिमिटिंग अमाइनो एसिड इज रिड्यूस्ड एंड अमाइनो एसिड इन एक्सेस कंप्लीट विद डाइटरी एंड लिमिटिंग अमाइनो एसिड्स, इट रिड्यूस द फीड इंटेक एंड रिड्यूस द परफॉर्मेंस. अगर आप देखेंगे, अगर अमाइनो एसिड्स का इम्बैलेंस है तो इम्बैलेंस क्या करेगा, ये फर्स्ट लिमिटिंग अमाइनो एसिड्स को रिड्यूस कर देगा. और फर्स्ट लिमिटिंग अमाइनो एसिड्स को जहां वो इफेक्ट करेगा, देयर विल बी रिड्यूस इन फीड इंटेक एंड देयर विल बी परफॉर्मेंस का गिर जाएगी. दूसरा, अमाइनो एसिड्स के एंटागोनिज्म भी होते हैं. लाइसिन और आर्जिनिन का, अगर आप लाइसिन बढ़ा देंगे तो आर्जिनिन का ऑक्सीडेशन बढ़ जाएगा और देयर विल बी डिफिशियंसी ऑफ आर्जिनिन. सो देयर इज अमाइनो एसिड्स एंटागोनिज्म आल्सो लाइक लाइसिन एंड आर्जिनिन. दूसरा जो एंटागोनिज्म है, इट इज बिटवीन ल्यूसीन एंड वेलिन वर्सेस आइसोल्यूसिन. If you will increase the leucine in the diet, it will increase the catabolism of isoleucine. There will be a loss of isoleucine and there will be deficiency of isoleucine. So another is antagonism of amino acids, and third is toxicity of the amino acid. Excess of the methionine will reduce the feed intake and reduce the growth. So whenever you are balancing the diet of the poultry, particularly protein, you have to take care of essential amino acids, critical amino acids, limiting amino acids. You have to take care of antagonism. You have to take care of the toxicity of the amino acid. You have to take care of the amino acid interaction. And last is you have to take care of the digestibility of the amino acid. आजकल जो लेटेस्ट चल रहा है, डाइजेस्टिबिलिटी ऑफ द अमाइनो एसिड्स. व्हेन वी आर कंसीडरिंग द डाइजेस्टिबिलिटी ऑफ द अमाइनो एसिड्स, इट इज अ कांसेप्ट ऑफ आइडियल प्रोटीन कांसेप्ट. आइडियल प्रोटीन कांसेप्ट क्या है? वी आर कंसीडरिंग द डाइजेस्टिबिलिटी ऑफ द अमाइनो एसिड्स. आपने पता चला कि मीथेनिन तो दे दिया, मीथेनिन की 50% डाइजेस्टिबिलिटी है, तो 50% तो आपका फीसिस और यूरिन से निकल गया, आपको 50% ही मिला. So when you are balancing the amino acids in the poultry diets, you have to consider the digestibility of the protein also. And when you are considering the digestibility of the protein, the concept is called ideal protein concept. और ideal protein concept में हम क्या कर रहे हैं? We are balancing. हम क्या करते हैं? लाइसिन को एक यूनिट मान लेते हैं और लाइसिन इन कंपैरिजन टू लाइसिन बाकी अमीनो एसिड्स का क्या रेशियो है, एंड इट इज कॉल्ड आइडियल प्रोटीन कंसेप्ट. Ideal protein concept is a ratio of essential amino acid present in the feed in ratio in comparison to lysine. In other words, lysine को अगर आप यूनिट मान लेते हैं, lysine के in comparison to lysine, methionine, arginine, isoleucine, leucine कितने हैं, उनका रेशियो क्या है? So ratio of different essential amino acid in ratio to in comparison to lysine is ideal protein concept.
तो इन न्यूट्रिशनिस्ट ने क्या किया, पोल्ट्री न्यूट्रिशनिस्ट ने, कि आइडियल जो प्रोटीन है, मतलब आइडियल जब कितना लाइसिन होना चाहिए और कितना मीथियोनिन का एक रेशियो निकाल लिया, और रेशियो से प्रोटीन को they are balancing the protein, particularly essential amino acids, in terms of ideal protein concept. ये लेटेस्ट है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब आप पोल्ट्री में राशन बनाएंगे तो पोल्ट्री का राशन में दो चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज एनर्जी, आपको बैलेंस करना है, और दूसरी चीज करना है आपको बैलेंस प्रोटीन। ये दो चीजें आपको बैलेंस करना है, मिनरल्स एंड विटामिन्स तो करना ही करना है। तो जब आप प्रोटीन की बात करते हैं मोनोगैस्ट्रिक एनिमल्स में, क्योंकि प्रोटीन जितना अच्छा प्रोटीन होगा उतना ही जल्दी प्रोटीन डिपॉजिट होगा, और ब्रायलर्स में उतना ही जल्दी बॉडी वेट गेन आएगा। जितना ही आप एनर्जी गेन इज बॉडी वेट गेन, जितना आप ज्यादा एनर्जी देंगे उतना ही जल्दी बॉडी वेट आएगा, क्योंकि प्रोटीन उतना ही जल्दी डिपॉजिट होगा, और एक्सेस ऑफ द energy is going to convert through gluconeogenesis in the protein deposit होगा। So the body weight gain is in terms of protein gain and energy gain। तो आपको प्रोटीन और एनर्जी के बारे में इनको बैलेंस करना ही पड़ेगा। तो नाउअडेज हम क्या कर रहे हैं, प्रोटीन में एसेंशियल अमीनो एसिड्स को बैलेंस कर रहे हैं, पर्टिकुलरली क्रिटिकल अमीनो एसिड्स और लिमिटिंग अमीनो एसिड्स। तो ये हो गए एसेंशियल अमीनो एसिड्स, इसमें 10 है एसेंशियल प्लस 1 ग्लाइसिन, तो ग्लाइसिन 11 अमीनो एसिड्स चाहिए। उनमें भी क्रिटिकल अमीनो एसिड्स है, क्रिटिकल अमीनो एसिड्स को बैलेंस करना जरूरी है। तो क्रिटिकल अमीनो एसिड्स क्या क्या है, लाइसिन, मीथेनिन, थियोनिन, ट्रिप्टोफैन और आर्जिनिन, आइसोल्यूसिन और ल्यूसिन, ये क्रिटिकल अमीनो एसिड्स है। In that critical amino acids, certain amino acids they are limiting. First limiting is, second limiting and third limiting। और ये प्रोटीन कौन सी आप प्रोटीन दे रहे हैं, अगर आप ब्रायलर को कॉर्न सोया डाइट दे रहे हैं, सोया प्रोटीन दे रहे हैं, केवल कॉर्न एनर्जी दे रहे हैं, तो इसमें जो फर्स्ट लिमिटिंग होगा वो होगा क्या, मिथ्योनिन, सेकंड लिमिटिंग होगा लाइसिन, एंड थर्ड लिमिटिंग रहेगा थियोनिन। अगर आप डाइट चेंज कर रहे हैं कॉर्न एनर्जी के लिए और जीएनसी ग्राउंडनट के प्रोटीन के लिए डाइट दे रहे हैं अगर मुर्गियों में, तो फर्स्ट लिमिटिंग लाइसिन हो जाएगा, मिथेनिन नहीं होगा, सेकंड लिमिटिंग माइथेनिन हो जाएगा, एंड थर्ड लिमिटिंग थियोनिन हो जाएगा। और थियोनिन जो है एक टाइप स्टार्टर ग्रोन लेयर होता है, लेयर में 3 फेजेस होते हैं, तो एक टाइप स्टार्टर में थियोनिन स्क्विल में थियोनिन इज सेकंड लिमिटिंग। तो अकॉर्डिंग टू द प्रोटीन आप कौन सी प्रोटीन खिला रहे हैं उसके हिसाब से फर्स्ट लिमिटिंग, सेकंड लिमिटिंग अमीनो एसिड्स होगा, एंड यू हैव टू, ये लिमिटिंग अमीनो एसिड्स को आपको बैलेंस करना जरूरी है। अगर आप प्रोटीन दे रहे हैं, अगर क्रिटिकल और लिमिटिंग अमीनो एसिड्स बैलेंस नहीं कर रहे हैं तो आपको प्रोडक्शन नहीं मिलेगा। और लेटेस्ट जो 21st सेंचुरी में हम लोग एज ए पोल्ट्री न्यूट्रिशनिस्ट कर रहे हैं, पोल्ट्री न्यूट्रिशनिस्ट एक ऐसा न्यूट्रिशनिस्ट है जो कि एनिमल साइंस और वेटरनरी साइंस और एग्रीकल्चर साइंस में सबसे ज्यादा पैसा कमाता है इंडस्ट्री में। और जितने भी पोल्ट्री न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो 2.5 से 3 करोड़ पर एनम पैसा कमाते हैं। So what they are doing, they are preparing the ration to the animals। बहुत बड़ी बड़ी फीड फैक्ट्रीज हैं जो कि पोल्ट्री राशन बनाती है। बड़े बड़े जो फार्मर्स हैं जिनके पास 10-10, 20-20 लाख लेयर है, वो खुद का फीड बनाते हैं। ब्रायलर से जो 10-10 लाख ब्रायलर्स रखते हैं तो खुद का फीड बनाते हैं। तो पोल्ट्री न्यूट्रिशन की बहुत ज्यादा वैल्यू और बहुत ज्यादा सैलरी। तो प्रोटीन का रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करना है। और थर्ड आपको करना है, दीज आर द मिनरल्स रिक्वायरमेंट। मिनरल्स में आपको मालूम है जो लार्जर क्वांटिटी में चाहिए उनको मेजर मिनरल्स बोलते हैं, जो स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए उनको माइनर मिनरल्स बोलते हैं। तो कैल्शियम, सोडियम एंड सल्फर, इसमें कैल्शियम एंड फास्फोरस
they are critical for poultry. And sodium and potassium chloride, sodium chloride, NaCl, पोटेशियम एंड सल्फर ये इंपॉर्टेंट नहीं है मेजर मिनरल्स में इनके सब पोल्ट्री, क्योंकि क्या है कि जितने भी आप माइक्रो मिनरल्स है, कॉपर है, वो सल्फेट के रूप में देते हैं जब आप मिनरल मिक्सचर बनाते हैं। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि मिनरल की जो रिक्वायरमेंट है वो किसी भी एनिमल्स में मिनरल मिक्सचर के रूप में दिया जाता है। वी यूज टू प्रोवाइड मिनरल मिक्सचर टू द एनिमल्स। इनके सब रूमिनेंट्स, हम अगर उनका दाना बना रहे हैं 100 किलो, उसमें हम 2 किलो मिनरल मिक्सचर मिलाते हैं और 1 किलो सॉल्ट मिलाते हैं, और 93 किलो उसमें आप एनर्जी कंसंट्रेट और प्रोटीन कंसंट्रेट मिलाते हैं। तो जो मिनरल्स देने का मेथड है, हाउ वी प्रोवाइड मिनरल्स टू द एनिमल्स, वी यूज टू प्रोवाइड मिनरल्स टू द एनिमल्स। कैसे करेंगे? एक तो मिनरल्स पानी से मिलेंगे, whatever soluble minerals are there, it is going to be provided to the animals through drinking water, soluble जो minerals है। तो first source is drinking water, another source is through feed and fodder। feed and fodder में minerals होते हैं, they are also available to the animals। so the second source to provide minerals and vitamins to the animals is through feed and fodder। the first source is water, another source is feed and fodder। And the concentrate, if you want to provide a concentrate source of minerals and vitamins, the source is mineral mixture। आप किसी बाजार में आप जाइए, बोलिए कि हमको ब्रॉयलर के लिए मिनरल मिक्सचर दीजिए, तो वो आपको मिनरल दे देगा। एंड दीज आर द, दे प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ मिनरल। तो जो आप दाना बनाएंगे मुर्गियों के लिए, तो उसमें आप ब्रॉयलर का जब दाना बनाएंगे उसमें 3 से 3.5 किलो आप दाना 100 में मिनरल मिक्सचर मिलाएंगे। तो मिनरल मिक्सचर कैसे बनता है? जो सॉल्ट होते हैं मेजर मिनरल्स के, लाइक कैल्शियम, हेलो, ये जो संघ होते हैं समुद्र में, संघ होते हैं, सीपी होती है, सेल, इनको इकट्ठा करके पीस लिया जाता है, एंड द प्रोडक्ट इज कॉल्ड सेल ग्रिट, एंड इट प्रोवाइड्स 38% ऑफ द कैल्शियम। So these are the source of the calcium for mineral mixture preparation in case of animals। तो animals को अगर कैल्शियम देना है, the first source is LSP, limestone powder, second source is dicalcium phosphate, third source is cell grit, and fourth source is calcite grit। ये जितने भी, हेलो, these are the sources। तो LSP में 38% कैल्शियम है, ठीक है, एंड डीसीपी और एलएसपी मेनली यूज करते हैं। एंड इन केस ऑफ लेयर्स वी आर आल्सो यूजिंग सेल ग्रिट इन केस ऑफ लेयर्स, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब yes, आपको सोडियम क्लोराइड देना है। सोडियम क्लोराइड का सोर्स जो है केवल सॉल्ट है, आप सॉल्ट दे दीजिए तो उससे आपको कैल्शियम और सोडियम और क्लोराइड मिल जाएगा। अब पोटेशियम और सल्फर नहीं देते जनरली पोल्ट्री डाइट्स में, जो आप सीरियल्स और अच्छा, पोल्ट्री डाइट्स आप बनाएंगे कैसे, ये मैं थोड़ी आपको बता दूं। एनर्जी ज्यादा सोर्सेस, तो एलएसपी में 38% कैल्शियम है, ठीक है, एंड डीसीपी और एलएसपी मेनली यूज करते हैं। एंड इन केस ऑफ लेयर्स वी आर आल्सो यूजिंग सेल ग्रिट इन केस ऑफ लेयर्स, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब yes, आपको सोडियम क्लोराइड देना है। सोडियम क्लोराइड का सोर्स जो है केवल सॉल्ट है, आप सॉल्ट दे दीजिए तो उससे आपको कैल्शियम और सोडियम और क्लोराइड मिल जाएगा। अब पोटेशियम और सल्फर नहीं देते जनरली पोल्ट्री डाइट्स में, जो आप सीरियल्स और अच्छा, पोल्ट्री डाइट्स आप बनाएंगे कैसे, ये मैं थोड़ी आपको बता दूं। एनर्जी अमाइनो एसिड, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, क्वालिटी ऑफ प्रोटीन बताते हैं, ठीक है। अब एक आता है क्रिटिकल अमाइनो एसिड्स। क्रिटिकल अमाइनो एसिड्स क्या है? दे आर द एसेंशियल अमाइनो एसिड्स व्हिच आर जनरली डेफिशिएंट इन पोल्ट्री डाइट्स, इनको क्रिटिकल अमाइनो एसिड्स करते हैं। तो जो 11 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है, इसमें से कुछ अमाइनो एसिड्स दे आर वेरी क्रिटिकल, और उसमें नंबर 1 है मीथेनिन, लाइसिन,
threonine, tryptophan, isoleucine, leucine and arginine. These are the critical amino acids. ये जो 5-6 amino acids है, they are very critical. तो आपको प्रोटीन के साथ साथ इन क्रिटिकल अमाइनो एसिड्स की को बैलेंस करना पड़ेगा डाइट में, अदरवाइज क्या होगा, इनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी और प्रोडक्शन गिर जाएगा. तो पहला जो मैंने कंसेप्ट बताया, प्रोटीन क्वालिटी, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, क्रिटिकल अमाइनो एसिड्स. एंड अमंग द क्रिटिकल अमाइनो एसिड्स, certain amino acids they are called limiting amino acids. इन limiting amino acids क्या होते हैं? limiting amino acids को how you can define the amino acids in a feed that is most deficient in relative to the bird's requirement is referred as first limiting amino acid. The amino acid in the feed that is most deficient in relative to the bird's requirement is referred as first limiting amino acid. Or you can say the ratio of amino acids present in the feed and bird requirement. तो first limiting amino acids क्या होंगे? First limiting, second limiting and third limiting. हम जो पोल्ट्री को डाइट दे रहे हैं उसमें जो सब में कम अमाइनो एसिड होगा वो फर्स्ट लिमिटिंग होगा. किसके? बर्ड के रिक्वायरमेंट के हिसाब से. तो मैं अपने बर्ड को जो भी फीड दे रहा हूं उसमें जो सब में कम अमाइनो एसिड प्रेजेंट होगा बर्ड की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, दैट इज फर्स्ट लिमिटिंग. तो फर्स्ट लिमिटिंग इज अ रेशियो ऑफ अमाइनो एसिड प्रेजेंट इन द फीड एंड अपॉन बर्ड्स रिक्वायरमेंट, फर्स्ट लिमिटिंग होगा. और फिर उसके हिसाब से सेकंड लिमिटिंग एंड थर्ड लिमिटिंग. तो मैंने 3 चीज अमाइनो एसिड्स में बताई. पहली चीज एसेंशियल अमाइनो एसिड, सेकंड इज क्रिटिकल अमाइनो एसिड एंड थर्ड इज लिमिटिंग अमाइनो एसिड. और लिमिटिंग अमाइनो एसिड्स को अगर आपने बैलेंस नहीं किया, प्रोटीन आपने दे दी है, जैसे किसी ब्रॉयलर को स्टार्टर को 23% प्रोटीन चाहिए तो डाइट में आपने 23% प्रोटीन दे दी, बट आपने लाइसिन और मिथेनिन जो कि लिमिटिंग अमाइनो एसिड्स है ब्रॉयलर में, उनको बैलेंस नहीं किया तो देयर विल बी डिफिशियंसी ऑफ द अमाइनो एसिड्स और फीड इनटेक गिर जाएगा और प्रोडक्शन गिर जाएगा. तो यू हैव टू बैलेंस critical and limiting amino acids, or you have to provide critical amino acids in the diet of the monogastric animals, whether it is poultry or swine, and you have to balance, definitely you have to balance limiting amino acids when you are preparing a diet of the poultry. तो ये बहुत important है बेटा, ठीक है ना. तो इसको आपको बैलेंस करना ही पड़ेगा. तो ये 3 अमाइनो एसिड्स मैंने बताए, ठीक है. अब आया आप अमाइनो एसिड्स का इम्बैलेंस होता है. अमाइनो एसिड्स का इम्बैलेंस में आपने देखा होगा कि इफ देयर इम्बैलेंस द यूटिलाइजेशन ऑफ फर्स्ट लिमिटिंग अमाइनो एसिड इज रिड्यूस्ड एंड अमाइनो एसिड इन एक्सेस कंप्लीट विद डाइटरी एंड लिमिटिंग अमाइनो एसिड्स, इट रिड्यूस द फीड इनटेक एंड रिड्यूस द परफॉर्मेंस. अगर आप देखेंगे, अगर अमाइनो एसिड्स का इम्बैलेंस है तो इम्बैलेंस क्या करेगा, ये फर्स्ट लिमिटिंग अमाइनो एसिड्स को रिड्यूस कर देगा. और फर्स्ट लिमिटिंग अमाइनो एसिड्स को जहां वो इफेक्ट करेगा, देयर विल बी रिड्यूस इन फीड इनटेक एंड देयर विल बी परफॉर्मेंस का गिर जाएगी. दूसरा, अमाइनो एसिड्स का एंटागोनिज्म भी होते हैं. लाइसिन और आर्जिनिन का, अगर आप लाइसिन बढ़ा देंगे तो आर्जिनिन का ऑक्सीडेशन बढ़ जाएगा और देयर विल बी डिफिशियंसी ऑफ आर्जिनिन. सो देयर इज अमाइनो एसिड्स एंटागोनिज्म आल्सो लाइक लाइसिन एंड आर्जिनिन. दूसरा जो एंटागोनिज्म है, इट इज बिटवीन ल्यूसिन एंड वेलिन वर्सेस आइसोल्यूसिन. If you will increase the leucine in the diet, it will increase the catabolism of isoleucine. There will be a loss of isoleucine and there will be deficiency of isoleucine. So another is antagonism of amino acids and third is toxicity of the amino acid.
excess of the methionine will reduce the feed intake and reduce the growth. So whenever you are balancing the diet of the poultry, particularly protein, you have to take care of essential amino acids, critical amino acids, limiting amino acids. You have to take care of antagonism. You have to take care of the toxicity of the amino acid. You have to take care of the amino acid interaction. And last is you have to take care of the digestibility of the amino acid. आजकल जो लेटेस्ट चल रहा है digestibility of the amino acids. When we are considering the digestibility of the amino acids, it is a concept of ideal protein concept. Ideal protein concept क्या है? We are considering the digestibility of the amino acids. आपने पता चला कि मीथेनिन तो दे दिया, मीथेनिन की 50% डाइजेस्टिबिलिटी है, तो 50% तो आपका फीसिस और यूरिन से निकल गया, आपको 50% ही मिला. So when you are balancing the amino acids in the poultry diets, you have to consider the digestibility of the protein also. And when you are considering the digestibility of the protein, the concept is called ideal protein concept. और ideal protein concept में हम क्या कर रहे हैं? We are balancing. हम क्या करते हैं? लाइसिन को एक यूनिट मान लेते हैं और लाइसिन इन कंपैरिजन टू लाइसिन बाकी अमीनो एसिड्स का क्या रेशियो है, एंड इट इज कॉल्ड आइडियल प्रोटीन कंसेप्ट. Ideal protein concept is a ratio of essential amino acid present in the feed in ratio in comparison to lysine. In other words, lysine को अगर आप यूनिट मान लेते हैं, lysine के in comparison to lysine, methionine, arginine, isoleucine, leucine कितने उनका रेशियो क्या है? So ratio of different essential amino acid in ratio to in comparison to lysine is ideal protein concept. तो इन न्यूट्रिशनिस्ट ने क्या किया, पोल्ट्री न्यूट्रिशनिस्ट ने, कि आइडियल जो प्रोटीन है, मतलब आइडियल जब कितना लाइसिन होना चाहिए और कितना मीथेनिन का एक रेशियो निकाल लिया, और रेशियो से प्रोटीन को they are balancing the protein, particularly essential amino acids, in terms of ideal protein concept. ये लेटेस्ट है. तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब आप पोल्ट्री में राशन बनाएंगे तो पोल्ट्री का राशन में दो चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट इज एनर्जी, आपको बैलेंस करना है, और दूसरी चीज करना है आपको बैलेंस प्रोटीन. ये दो चीजें आपको बैलेंस करना है, मिनरल्स एंड विटामिन्स तो करना ही करना है. तो जब आप प्रोटीन की बात करते हैं मोनोगैस्ट्रिक एनिमल्स में, क्योंकि प्रोटीन जितना अच्छा प्रोटीन होगा उतना ही जल्दी प्रोटीन डिपॉजिट होगा, और ब्रायलर्स में उतना ही जल्दी बॉडी वेट गेन आएगा. जितना ही आप एनर्जी गेन इज बॉडी वेट गेन. जितना आप ज्यादा एनर्जी देंगे उतना ही जल्दी बॉडी वेट आएगा, क्योंकि प्रोटीन उतना ही जल्दी डिपॉजिट होगा, और एक्सेस ऑफ द एनर्जी इज गोइंग टू कन्वर्ट थ्रू ग्लूकोनियोजेनेसिस इन द प्रोटीन. प्रोटीन डिपॉजिट होगा. सो द बॉडी वेट गेन इज इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन गेन एंड एनर्जी गेन. तो आपको प्रोटीन और एनर्जी के बारे में इनको बैलेंस करना ही पड़ेगा. तो नाउ डेज हम क्या कर रहे हैं, प्रोटीन में एसेंशियल अमीनो एसिड्स को बैलेंस कर रहे हैं, पर्टिकुलरली क्रिटिकल अमीनो एसिड्स और लिमिटिंग अमीनो एसिड्स. तो ये हो गए एसेंशियल अमीनो एसिड्स. इसमें 10 है एसेंशियल प्लस 1 ग्लाइसिन. तो ग्लाइसिन 11 अमीनो एसिड्स चाहिए. उनमें भी क्रिटिकल अमीनो एसिड्स है. क्रिटिकल अमीनो एसिड्स को बैलेंस करना जरूरी है. तो क्रिटिकल अमीनो एसिड्स क्या क्या है? लाइसिन, मीथेनिन, थियोनिन, ट्रिप्टोफैन और आर्जिनिन, आइसोल्यूसिन और ल्यूसिन. ये क्रिटिकल अमीनो एसिड्स है. In that critical amino acids, certain amino acids they are limiting.
फर्स्ट लिमिटिंग इज, सेकंड लिमिटिंग एंड थर्ड लिमिटिंग। और ये प्रोटीन कौन सी आप प्रोटीन दे रहे हैं? अगर आप ब्रायलर को कॉर्न सोया डाइट दे रहे हैं, सोया प्रोटीन दे रहे हैं, केवल कॉर्न एनर्जी दे रहे हैं, तो इसमें जो फर्स्ट लिमिटिंग होगा वो होगा क्या? मिथ्योनिन। सेकंड लिमिटिंग होगा लाइसिन एंड थर्ड लिमिटिंग रहेगा थ्रियोनिन। अगर आप डाइट चेंज कर रहे हैं कॉर्न एनर्जी के लिए और जीएनसी ग्राउंडनट के प्रोटीन के लिए डाइट दे रहे हैं अगर मुर्गियों में, तो फर्स्ट लिमिटिंग लाइसिन हो जाएगा, मिथ्योनिन नहीं होगा। सेकंड लिमिटिंग माइथोनिन हो जाएगा एंड थर्ड लिमिटिंग थ्रियोनिन हो जाएगा। और थ्रियोनिन जो है एक टाइप स्टार्टर ग्रोअर लेयर होता है, लेयर में 3 फेजेस होते हैं। तो एक टाइप स्टार्टर में थ्रियोनिन स्क्विल में थ्रियोनिन इज सेकंड लिमिटिंग। तो अकॉर्डिंग टू द प्रोटीन आप कौन सी प्रोटीन खिला रहे हैं उसके हिसाब से फर्स्ट लिमिटिंग सेकंड लिमिटिंग अमीनो एसिड्स होगा। एंड यू हैव टू, ये लिमिटिंग अमीनो एसिड्स को आपको बैलेंस करना जरूरी है। अगर आप प्रोटीन दे रहे हैं, अगर क्रिटिकल और लिमिटिंग अमीनो एसिड बैलेंस नहीं कर रहे हैं तो आपको प्रोडक्शन नहीं मिलेगा। और लेटेस्ट जो 21st सेंचुरी में हम लोग एज ए पोल्ट्री न्यूट्रिशनिस्ट कर रहे हैं, पोल्ट्री न्यूट्रिशनिस्ट एक ऐसा न्यूट्रिशनिस्ट है जो कि एनिमल साइंस और वेटरनरी साइंस और एग्रीकल्चर साइंस में सबसे ज्यादा पैसा कमाता है इंडस्ट्री में। और जितने भी पोल्ट्री न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो 2.5 से 3 करोड़ पर एनम पैसा कमाते हैं। So what they are doing, they are preparing the ration to the animals. बहुत बड़ी बड़ी फीड फैक्ट्रीज हैं जो कि पोल्ट्री राशन बनाती है। बड़े बड़े जो फार्मर्स हैं जिनके पास 10-10, 20-20 लाख लेयर है, वो खुद का फीड बनाते हैं। ब्रायलर से जो 10-10 लाख ब्रायलर्स रखते हैं वो खुद का फीड बनाते हैं। तो पोल्ट्री न्यूट्रिशन की बहुत ज्यादा वैल्यू और बहुत ज्यादा सैलरी। तो प्रोटीन का रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करना है। और थर्ड आपको करना है, दीज आर द मिनरल्स रिक्वायरमेंट। मिनरल्स में आपको मालूम है जो लार्जर क्वांटिटी में चाहिए उनको मेजर मिनरल्स बोलते हैं, जो स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए उनको माइनर मिनरल्स बोलते हैं। तो कैल्शियम, सोडियम एंड सल्फर, इसमें कैल्शियम एंड फास्फोरस दे आर क्रिटिकल फॉर पोल्ट्री। एंड सोडियम एंड पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड NaCl, पोटेशियम एंड सल्फर ये इंपॉर्टेंट नहीं है मेजर मिनरल्स में इनके सब पोल्ट्री। क्योंकि क्या है कि जितने भी आप माइक्रो मिनरल्स हैं, कॉपर है, वो सल्फेट के रूप में देते हैं जब आप मिनरल मिक्सचर बनाते हैं। अच्छा मैं आपको ये बता दूं कि मिनरल की जो रिक्वायरमेंट है वो किसी भी एनिमल्स में मिनरल मिक्सचर के रूप में दिया जाता है। वी यूज्ड टू प्रोवाइड मिनरल मिक्सचर टू द एनिमल्स। इनके सब रूमिनेंट्स, हम अगर उनका दाना बना रहे हैं 100 किलो, उसमें हम 2 किलो मिनरल मिक्सचर मिलाते हैं और 1 किलो सॉल्ट मिलाते हैं और 93 किलो उसमें आप एनर्जी कंसंट्रेट और प्रोटीन कंसंट्रेट मिलाते हैं। तो जो मिनरल्स देने का मेथड है, हाउ वी प्रोवाइड मिनरल्स टू द एनिमल्स, वी यूज्ड टू प्रोवाइड मिनरल्स टू द एनिमल्स। कैसे करेंगे? एक तो मिनरल्स पानी से मिलेंगे, whatever soluble minerals are there, it is going to be provided to the animals through drinking water, soluble जो minerals है। तो first source is drinking water, another source is through feed and fodder। feed and fodder में भी minerals होते हैं, they are also available to the animals। So the second source to provide minerals and vitamins to the animals is through feed and fodder। The first source is water, another source is feed and fodder। And the concentrate, if you want to provide a concentrate source of minerals and vitamins, the source is mineral mixture। आप किसी बाजार में आप जाइए, बोलिए कि हमको ब्रायलर के लिए मिनरल मिक्सचर दीजिए, तो वो आपको मिनरल दे देगा। एंड दीज आर द, दे प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ मिनरल। तो जो आप दाना बनाएंगे मुर्गियों के लिए, तो उसमें आप ब्रायलर का जब दाना बनाएंगे उसमें 3 से 3.5 किलो आप दाना 100 ग्राम में मिनरल मिक्सचर मिलाएंगे। तो मिनरल मिक्सचर कैसे बनता है? जो सॉल्ट होते हैं मेजर मिनरल्स के, लाइक कैल्शियम, हेलो एनिमल्स, तो आपको फिश मील एंड मीट मील मिलती है बाजार में। तो फिश मील क्या है? ये जो समुद्र में मछली पकड़ी जाती है, व्हेन वी आर कैप्चरिंग द फिश,
इन सी सोर्स, तो जो बड़ी मछली है वो खाने में काम आ जाती है फॉर ह्यूमन बींग्स, एंड द स्मॉल फिशेस दे आर ड्राइड इन सी सोर्स, उनको सी सोर्स में ड्राई कर लिया जाता है और उनको पाउडर फॉर्म पे बना लिया जाता है, एंड दैट फिश पाउडर, इसको फिश मील बोलते हैं, ये बाजार में बिकता है, एंड वी आर इंक्लूडिंग दिस फिश मील इन द डाइट ऑफ द पोल्ट्री एंड पिग्स आल्सो, एंड पर्टिकुलरली स्मॉल रूमिनेंट्स, स्मॉल sorry, मोनोगैस्ट्रिक एनिमल्स. सो दीज मोनोगैस्ट्रिक एनिमल्स से इनको अच्छी गुड क्वालिटी प्रोटीन मिलती है. फिश मील वी आर यूजिंग. in case of meat meal, क्या होता है कि जो फॉलन एनिमल्स हैं, फॉलन एनिमल्स मतलब जो बड़े एनिमल्स हैं, रूमिनेंट और स्मॉल रूमिनेंट से मर जाते हैं, तो या फिर स्लॉटर हाउस में एडिबल जो इनका 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 फ्लैश है, एडिबल फ्लैश इज ईटन बाय द ह्यूमन बीइंग, और जो अनएडिबल पार्ट है इसको सुखा लिया जाता है, पाउडर फॉर्म में बना लिया जाता है, एंड इट इज सोल्ड एज ए मीट मील. मीट मील, तो इसको क्या करते हैं, एयर ड्राई कर लेते हैं मीट को पाउडर फॉर्म में, और हम इसको मीट मील को हम वी आर यूजिंग इन ब्रॉयलर इन मोनोगैस्ट्रिक डाइट. और वेजिटेबल प्रोटीन सोर्सेज में ऑल टाइप ऑफ ऑयल सीड केक्स. ऑयल सीड केक्स क्या है, जितने भी तेल वाले वो होते हैं अनाज, उसमें से तेल निकाल लेते हैं, और जो फ्रेश मटेरियल बचता है उसको ऑयल सीड केक बोलते हैं. लाइक सरसों में सरसों का तेल निकाल लिया,